بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات کی ہے، جس میں جنوب ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق امور پر بات چیت کی ہے۔ اس موقع پر سفیر عاصم افتخار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ یہ پریس کانفرنس پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی ہے۔ پہلگام واقعے سے متعلق پاکستان نے بڑی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، ہم کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ 2، 3 یا اس سے زائد ممالک مل کر تحقیقات کر لیں یا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوئی کمیشن قائم کر دے، ہم خیر مقدم کریں گے۔ مذاکرات تو آپ کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بے شمار کشیدگی ہو اس میں بھی یہ آپشن جو ہے برقرار رہتی ہے، لیکن اس دو چیزوں کا لنکیج کوئی نہیں ہے کہ جی ہندوستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ ایکسپیکٹ کرنا یا نہ کرنا جو ہے نا وہ آپشن نہیں ہے۔ اس کشیدگی کے دوران جو ہے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وزیر خارجہ ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ہیں، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے جو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو جو اپروچ کیا ہے، ایک متوازن بات انہوں نے کی ہے، اور یہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ باہمی ایک گفت و شنید کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ابھی بھی پرائم منسٹر کی جو ایک آفر ہے وہ بالکل سٹینڈ کرتی ہے۔ ہم ویلکم کر رہے ہیں جن کے اوپر الزام لگا رہا ہے ہندوستان، تو جن کو گریوینس ہے ان کو بھی ویلکم کرنا چاہیے اس آفر کا۔ امیڈیٹلی ایک کرائسس کے دوران جو ہے اس قسم کی جس کے ہاتھ صاف ہوں وہی یہ آفر کرتا ہے۔ 2 کر لیں، 3 کر لیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو ہے وہ کوئی کمیشن بنا دیں 2، 4، 5 ملکوں کا۔ اینی انکوائری، اینی انویسٹیگیشن ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا کہ یہ اس کے پیچھے کچھ اور نہ نکل آئے۔ انڈین کلیم کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں میسو کریکس فرام ود ان انڈیا جو ہے وہ پڑ گئے ہیں۔ ان کے اندر سے اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ 370 والا معاملہ یا 35A والا معاملہ، یہ واقعہ جب ہوا ہے ہماری طرف سے تو یہی کہا گیا کہ جی آپ 12:30 گھروں سے باہر نکل آئیں، آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں۔ اس وقت کی حکومت نے جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں کیا جو کشمیر کے سٹیٹس کے آلٹر ہونے سے جو خدشات یا کشمیریوں کے تھے وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کو آلٹر نہیں کیا گیا۔ کشمیریوں کے پھر جو ہے گریوینسز جو ہے، ناراضگی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ لیکن ایک بڑی ڈیسپریشن ہے وہاں پہ، جس مقصد کے لیے یہ سارے واقعات وہاں پہ کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے اقتدار کی بھوک ہوتی ہے۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مسائل کا ذمہ دارانہ حل نکالیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی ہم منصب جے شنکر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بدھ کو بات کی تھی، جس میں سیکریٹری مارکو روبیو نے دونوں ممالک سے کہا کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوب ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ انہوں نے کہا امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ ایک سوال پر ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا امریکہ مسلسل رابطے میں ہے، ٹرمپ انتظامیہ مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے اور دونوں فریقین سے کہہ رہی ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل نکالیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ وہ کوئی شک میں نہ رہے، بھارت کی طرف سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر تیار ہے۔ پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ضرور ہے لیکن قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے وقار ستی۔ کوئی شک میں نہ رہے، بھارت کی طرف سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر تیار ہیں۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में हैमर स्ट्राइक के उन्वान से होने वाली पाकिस्तान आर्मी की हाई इंटेंसिटी फील्ड ट्रेनिंग मश्क के मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से मुनक्कदा मश्क में जदीद हथियारों, हम-आहंग ऑपरेशन, हकीकी जंग जैसे माहौल में तरबियत का मुजाहरा किया गया। मश्क में मल्टी रोल फाइटर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें, जंगी फजाई यूनिट्स और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग शामिल थी। मुख्तलिफ कोर्स और खिदमात से ताल्लुक रखने वाले दस्तों ने मरबूत और ताकतवर हमला और हिकमत अमली का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने अफवाज के अज़्म, पेशावराना सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा और कहा पाकिस्तान आर्मी जदीद तरबियत और हिकमत अमली में मुसलसल तरक्की कर रही है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जज्बा, पेशावराना महारत इस बात की जमानत है कि हम हर मैदान में दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हैमर स्ट्राइक मश्क में सीनियर फौजी क़यादत, फॉर्मेशन कमांडर्स और दीगर खिदमात से ताल्लुक रखने वाले मौजूदीन शरीक हुए। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। चीनी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध तास मुआहदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहदे से इनहिराफ का हक नहीं है। जम्मू और कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने कहा भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो TTP, BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने वाक़ई की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए अपनी पेशकश की तौसीक़ पर भी चीन का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर के पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया। कहा पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान को ऐसे किसी भी वाक़े में मुलव्वस होने से कोई फ़ायदा नहीं। अमीर क़तर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। कहा क़तर मौजूदा बहरान में कमी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा शुदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल में ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर भी कभी समझौता नहीं करेगा। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारतीय हुकाम इजाज़त दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है। कहा पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुताद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मिल रही हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाई सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था गुजरात के कसाई ने दरियाई सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, ये असल निशाना दरियाई सिंध है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत है तो दे, हम इसको मीरपुर खास में तख्ता-ए-दार पर लटकाएंगे। किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में, नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई
मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, सबूत है तो हमें वो सबूत दो। मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छटा फांसी में लगा दें। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो हुकूमत का जमीन है जो आबाद नहीं है वहां भी आप ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। आप बड़े बड़े ताकतवर किसानों के साथ मिलके, अमीर तरीन शख्स के साथ मिलके पाकिस्तान का ऐसा मजबूत मॉडर्न एग्रीकल्चर का निज़ाम बनाएं जिससे हम उनका भी जदीद तरीन एग्रीकल्चर का मुकाबला कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे, हम पब्लिक प्राइवेट फार्मिंग करेंगे। मौसम की खबर दे महकमा मौसमियात का कहना है आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, बालाई सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कुछ मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रात को तेज़ आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। आंधी से रेस्को रीजन में दर्जनों फीडर्स भी ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। खराब मौसम की वजह से मुल्क भर में 6 परवाज़ें मनसूख और दर्जनों ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। कराची, गवादर, स्कर्दू, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर से 40 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। मुल्तान में किसान की मेहनत का सोना गंदम सड़कों पर अपने खरीदार का मुंतज़िर है। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस गंदम का रेट तय न किए जाने पर साल भर पसीना बहाने वाला किसान परेशान हाल है। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान की ज़मीनों से निकला हुआ सोना किसान समेत रोडों पर जो है वो बिक रहा है। मेरी मुराद है मुल्तान में फ़रोख्त होने वाली गंदम के हवाले से। मुल्तान में तकरीबन 4,31,000 एकड़ के ऊपर गंदम जो है वो काश्त की गई थी, जिससे इस दफ़ा भी अच्छी बम्पर क्रॉप जो है वो हासिल होने का जो है वो कहा गया था महकमा ज़राअत की जानिब से। लेकिन इस वक्त जो है वो किसान और गंदम दोनों ही जो है वो रोड पर बिल्कुल पड़ी हुई है और यहाँ पर ख़रीदार भी नहीं है। यहाँ को लेने वाला नहीं है। हम रोड में गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, यहाँ आके हमारा मजाक उठाते हैं, कहते हैं इसका 1800 रेट है, 2000 रेट है, तो लिहाजा जो ना रेट फिक्स किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। यहाँ पे किसान है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे अभी तक ख़रीदार कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये बात फैली हुई है कि अभी मज़ीद गंदम की कीमत में मज़ीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उनका नुकसान जो है मज़ीद बढ़ सकता है। यहाँ पे किसानों की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि हुकूमत जो है वो कम से कम जो गंदम का रेट है वो उसको फिक्स करे, ताकि उनके लिए जो मुश्किलात है उसमें थोड़ी कमी हो सके। जी, दरियाओं में पानी की मुसलसल कमी जहां ज़मीनों को खुश्क कर रही है, वहीं माहीगीर भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। मौला पानी अखियान मुझो साथो बने। ये फिदा हुसैन हैं जो दरिया से मछली पकड़कर अपनी रोजी कमाते हैं, लेकिन दरियाए सिंध में इन दिनों पानी की कमी के सबब जहां शिकार के लिए मछलियां खत्म होती जा रही हैं, तो वहीं फिदा हुसैन के लिए रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि इन दिनों फिदा हुसैन और इस जैसे माहीगीर न सिर्फ कश्तियों और जाल की मरम्मत कर रहे हैं, बल्कि अपनी कश्तियों पर बैठकर कसीदा गोई में रब के हुजूर दरिया में पानी की इल्तिजा कर रहे हैं। मन का थिए रेहान, मन का थिए रेहान, मुझो साथो बने है मौला पानी अखियान मुझो साथो बने।
फिदा हुसैन की शायरी में छुपी दर्द भरी आवाज सिर्फ एक माहीगीर की फरियाद ही नहीं बल्कि ये उस सिंध की सदा भी है जो पानी की शदीद कमी के सबब पानी की आमद का मुंतजिर है। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी ज़राअत की तरक्की और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर स्वात में एक रोज़ा मुशावरती सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। सेमिनार में हुकूमत, तहकीकी इदारों, किसान तंजीमों, निजी शोबे और तरक्याती शरकतदारों के नुमाइंदे शामिल थे। इस मौके पर शुरका ने पहाड़ी इलाकों की हयातियाती अहमियत और मकामी इल्म की अफादियत पर रोशनी डाली और कहा कि इन इलाकों में मौसमियाती चैलेंजेस के बावजूद ज़राअत के बेपनाह मौक़े मौजूद है। ज़र माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, फसलों की पैदावार में कमी और मिट्टी की कटाव जैसे खतरात की निशानदही की। उनका कहना था कि मौसमियाती लिहाज से स्मार्ट ज़राअत वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़र माहिरीन का कहना था कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माशी बेहतरी और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। खबर दें आपको, कराची में कबूतरों से इंसानों में फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा हो गया है। कबूतरों से फैलने वाली बीमारी बर्ड फेंसर्स लंग्स से ज़्यादातर ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। तफसील जानेंगे शवाला असलम से। शवाला, बताइएगा ये कौन सी बीमारी है और मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा हो रहा है। बर्ड फेंसर्स लंग्स या हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस से ज्यादातर खवातीन मुतासर हो रही हैं और एक निजी अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस के रिपोर्ट हो रहे हैं। कबूतर के परों और फुजले के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़रात एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। परों के ज़रात खिड़कियों और एसी के जरिए घरों में दाखिल हो जाते हैं और शदीद केसेस में मरीजों को स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन या फेफड़ों की पेवनकारी की भी जरूरत पड़ सकती है। बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों से दूरी और एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है और मुतासरा अफराद परिंदों से फौरी तौर पर दूरी इख्तियार करें। जबकि अगर हम आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में भी रिहायशी इलाकों में कबूतरों को दाना डालना ममनू है। अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें कराची के, तो उनका ये कहना है कि जो सांस के अमराज हैं वो तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज करना मुश्किल है इस वक्त। जी शुक्रिया शवाला अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जजेस के पुरतायुस दफातर और वसाइल मजदूरों के तवस्सुत से हैं। मजदूर समेत हर शख्स के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। आलमी यौम मजदूर के मौके पर इस्लामाबाद में कौमी इदारा बराए सनती पैदावार के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा, वर्कर और मालिकान के दरमियान सुलह रहमी और यकजानियत लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज। कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में इनेकाद। चेयरमैन NIRC शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि NIRC का काम मजदूर और मालिकान को इकट्ठा करना है। NIRC वो अदारा है जो एक न्यूट्रल वैल्यू की हैसियत से तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दे सकती है। तकरीब के मेहमान खसूसी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है, जज तो बस फैसले करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते, तो आप हैरान हो गए कि क्या करते हो, आप पर क्या करते हो। हम फैसला करते हैं क्योंकि इंसाफ का काम अल्लाह ताला का है। हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम इंसाफ कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हमें इस दुनिया में दी है, तो लिहाजा हम फैसला किस बुनियाद पर करते हैं? जो मुरवजा कवानीन है और जो हमारे सामने मवाद आता है, हम उसके अंदर रहते हुए फैसला करते हैं। आप कहते होंगे जी मेरा तो हक बनता था, आपने हक नहीं दिया। हम किसी की ज़ुबानी बात पर नहीं, हम उस जो रिकॉर्ड हमारे सामने होता है, जो हमारे सामने कवानीन होते हैं, उसके होते हुए हम पाबंद हैं कि हम उसके अंदर रहकर फैसला करें। यकीनन हमसे फैसले गलत होते होंगे, इंसान है, इंसान से गलती होती है। मुकर्रिरीन ने मजदूरों को दरपेश मसाइल और उनके हल का तरीक़ेकार पेश किया। आर्टिकल 9 टू आर्टिकल 27 आर दी फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हकूक जो दिए यूनाइटेड नेशंस ने। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस तल्लुक की बुनियाद इज्जत, डिग्निटी होगी। लेबर रिलेशन की बुनियाद स्लेवरी नहीं होगी बल्कि आज़ादी होगी।
कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में मुख्तलिफ मजदूर यूनियन, सरकारी इदारों और सियासी रहनुमाओं को सोशल डायलॉग के जरिए सनती हमआहंगी के मौजू पर इकट्ठा किया गया। सेशन में पहली मर्तबा तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बिठाकर मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने पर इत्तफाक किया गया। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत अजीज सिद्दीकी ने करारदाद पेश करते हुए कहा, हुकूमत आजिर तंजीमों और मजदूर तंजीमों के दरमियान मौसर सैफरीकी मकालमा किया जाए, लेबर कवानीन की अमलदारी के लिए मौसर निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, वर्कर्स के नुमाइंदों के साथ खुली बातचीत और मुशावरत को फ़रोग दिया जाए। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ऐसी कानून साजी का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें मेहनत कशों के हुकूक का जिक्र ना हो। अरफा फ़िरोज़ ज़की की रिपोर्ट देखिए। कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मेहनत कशों के मसाइल का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा कर रहा हूँ। मेहनत कश हर तबके का, हर रियासत और हर मुल्क का एक ऐसा तबका है जो बिलाशुबा लायके तहसीन है। मैं बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ आपके 2 शोबों के लिए अपने तई आवाज़ उठाता हूँ और कई दफ़ा मीटिंग्स में मुझे कहा जाता है कि आप हुकूमती वज़ीर की बजाय अपोजिशन रुकन लग रहे हैं। वो 2 शोबे हैं, एक कानकनी है और दूसरा कंस्ट्रक्शन है। चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी ने करारदाद पेश करते हुए कहा, हुकूमत आजिर तंजीमों और मजदूर तंजीमों के दरमियान मौसर सैफरीकी मुकालमा किया जाए। सैफरीकी सोशल डायलॉग पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल की जमानत है। मजदूर कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद और कानून साजी में बेहतरी की जरूरत है। बाहमी मुशावरत के इदारों और कमेटियों का किरदार मजबूत होना चाहिए। माशी तरक्की, सनती पॉलिसी, हुनर के फ़रोग़ और माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसियों में समाजी मुकालमे के असूल शामिल किए जाएँ। लेबर कवानीन की अमलदारी के लिए मौसर निज़ाम मुतारफ कराए जाएँ। सैफरीकी मशावरती कमेटियों के जरिए आजर और मजदूर तंजीमों से फ़ार राब्ते कायम किए जाएँ। सोशल डायलॉग प्रोसेसेस एट नेशनल, प्रोविंशियल एंड सेक्टोरियल लेवल्स। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने कहा, वर्कर्स के कानून के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रेशियस स्टोन्स हैं, मिनरल्स निकलते हैं ताजिकिस्तान में, लेकिन हमारे पास कारीगर नहीं है जो ज्वेलरी बना सके। इसी तरह ही उनको टीचर्स की ज़रूरत है। मतलब हर शोबे की दुनिया भर में डिमांड है, लेकिन अब दुनिया की डिमांड ये है कि उस बंदे के पास कुछ ना कुछ हुनर भी होना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली मजदूर यूनियंस के नुमाइंदगान को शील्ड पेश की। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अरफा फ़िरोज़ ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब में जियो टेलीविजन की पजीर आई। बेहतरीन परफॉर्मेंस और मकबूलियत के इतराफ़ में व्यूअर्स चॉइस की 4 कैटेगरीज के अवार्ड 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिस्से में आए। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए ये खुशखबरी एक एजाज है जो 23rd लक्स स्टाइल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब में 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा मास्टरपीस ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिस्से में आया है। साल 2024 की बेस्ट टीवी सीरियल व्यूअर्स चॉइस करार पाई है ड्रामा सीरियल तेरे बिन, जिसे न सिर्फ जियो टेलीविजन के शायकीन ने सराहा बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शदीद पसीराई की हामिल है। यही नहीं बल्कि ड्रामा सीरियल में बेस्ट टीवी एक्टर मेल व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड वहाज अली के नाम ठहरा, जबकि बेस्ट एक्टर फीमेल व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड यमुना जैदी के हिस्से में आया। क्या होती है बेवफाई तुझे क्या होती है बेवफाई की मधुर तरंग पर दुनिया भर को दीवाना बना देने वाला तेरे बिन का OST भी इस दौड़ में बाजी ले गया और बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक व्यूअर्स चॉइस के अवार्ड का फातेह ठहरा है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में सराहने के लिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन के प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी और जियो टेलीविजन का अपने नाक़दीन, परस्तारों और अपने चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया।